Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Greenland. Greenland, the land of ice and snow. What we will study in this chapter about the location of Greenland, climate, vegetation, life in Greenland and economy of Greenland, transport and communication, culture and sports and recent changes. Frigid zone is the coldest zone in the world because it lies near the poles. As you know, poles के पास का जो एरिया होता है बच्चे, वहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाती तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो उस जोन को क्या कहते हैं? फ्रीजिड जोन, क्योंकि वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है. Frigid zone is subdivided into the great ice caps and the tundra region. The great ice caps around the North Pole as well as South Pole are permanently covered with thick sheets of ice and there is no life on these ice caps. अब जो आपका ये फ्रीजिड जोन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक ग्रेट आइस कैप्स में, ठीक है, और एक टुंड्रा रीजन में. ग्रेट आइस कैप्स क्या होते हैं? जहाँ मोटे मोटे थिक शीट्स ऑफ आइस होती हैं, वहाँ पर कोई क्या होता है? देयर इज नो लाइफ ऑन आइस कैप्स. और क्या बर्फ पर कोई रह सकता है? नो, तो कोई लाइफ नहीं होती है. एंड हाउएवर सम पीपल लिव इन द टुंड्रा रीजन. लेकिन जो दूसरा पार्ट है दैट इज टुंड्रा रीजन दैट इज कोल्ड आर्कटिक रीजन. When ice melts for a few months during short summer, जहाँ पर कुछ टाइम के लिए आइस शीट जो है वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है, कुछ टाइम की शॉर्ट समर आती है जिसमें आइस मेल्ट हो जाती है, वहाँ पर फिर भी कुछ लोग रहते हैं. ग्रीनलैंड, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन दिस रीजन. और ऐसा ही एक ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, ठीक है, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो कि टुंड्रा रीजन में पोल्स के पास लोकेटेड है. फाइन. नाउ सी वेयर इज इट लोकेटेड. This is the location of Greenland. Greenland is member country of Kingdom of Denmark. Nuuk Godab is the capital of this island. Greenland जो है उसकी कैपिटल क्या है? Nuuk, okay, and it is the member country of Kingdom of Denmark. And it is located between the Arctic and Atlantic Oceans, east of the Canadian Arctic archipelago. In terms of degree, it lies between latitudes 59 degree and 84 degree north. And longitude is 11 degree and 74 degree west. The Atlantic Ocean borders Greenland southeast and the Greenland Sea is to the east and the Arctic Ocean is to the north and Baffin Bay is to the west. तो इस तरीके से ये आइलैंड जो है ओशियन से, सी से घिरा हुआ है. The nearest countries are Iceland and east of Greenland in the Atlantic Ocean and Canada to the west and across Baffin Bay. These are the neighboring countries of Greenland. Greenland is the world's largest island and is the largest dependent territory by area in the world. It also contains the world's largest national park. और सबसे बड़ा यानी दुनिया का largest national park वो भी कहाँ located है? That is located in Greenland. Now, all towns and settlements of Greenland are situated along the ice-free coast, with the population being concentrated along the western coast. And the northeastern part of Greenland, which includes sections of North Greenland and East Greenland, is not part of any municipality, but is the site of the world's largest national park, that is Northeast Greenland National Park. जो अभी आपने पढ़ा, that is the world's largest national park. Fine. यहाँ पर कोई म्यूनसिपालिटी नहीं है, एक रीजन जो है वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है जहाँ पर म्यूनसिपालिटी गवर्न करती है, और एक रीजन जहाँ पर नेशनल पार्क बना हुआ है. About 81% of Greenland surface is covered by the ice sheet. Fine. And the weight of the ice has depressed the central land area into a basin. और जो आइस का वेट इतना ज़्यादा है कि जो सेंट्रल पार्ट है वो डिप्रेस हो गया है, नीचे की तरफ दब गया है और वहाँ पर क्या बन गया है? एक बेसिन की जगह ले ली है उसने. The extreme north of Greenland, Peary Land, is not covered by an ice sheet and the highest point on Greenland is Gunborg, that is at 3700 meter, 12,139 feet, that is Gunbjorn Field. Next is climate. क्लाइमेट कैसा है ग्रीनलैंड का? जैसे कि आपको पता है फ्रीजिड जोन में लाई करता है तो कैसे क्लाइमेट होगा? ठंडा क्लाइमेट होगा.
More than 4/5 of the total area of Greenland is covered with ice and snow. Most of the ice-free land is along the coast and has low mountains. जहाँ पर आइस नहीं है, वैसे तो 4/5 जो टोटल एरिया है वो सारा आइस से कवर है, ठीक है, लेकिन जहाँ पर आइस और स्नो नहीं है वो कौन से एरिया है, जैसे कि कोस्ट के पास जहाँ पर लो माउंटेन्स हैं. And though the gaps in the mountains, ice spills into the sea from the glaciers. When ice reaches the water, it sometimes breaks off from the main mass of ice and floats out into the sea as iceberg. कई बार क्या होता है, जब आइस मेल्ट होती है तो आइस जो है, आइस के माउंटेन जो है वो टूट जाते हैं और वो सी में गिर जाते हैं. जब आइस टाइप की जो रॉक होती है, यानी एक बड़ा माउंटेन, एक बड़ी रॉक लगा लो, ठीक है, बिग रॉक ऑफ स्नो, उसको क्या कहते हैं, आइसबर्ग, जो कि सी में फ्लोट करती है. These icebergs are a great danger to ships because they are huge moving masses of ice and can cause immense danger. अब ये आइस शीट जो है, अब दूर से क्या लगता है, शिप्स होती हैं उनको क्या लगता है दूर से कि एक माउंटेन होगा, लेकिन असली में क्या होती है, वो एक आइसबर्ग होती है, फ्लोटिंग मासेस ऑफ आइस होते हैं, ठीक है. तो इससे शिप को बहुत ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि उन्हें ये दिखाई नहीं देती. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो हाउ लार्ज एन आइसबर्ग इज बिकॉज 90% ऑफ इट इज़ हिडन अंडर द वाटर एंड ओनली द टिप ऑफ इट कैन बी सीन. अब शिप को क्या लगता है, सिर्फ जो टिप होती है ना आइसबर्ग की वो दिखाई देती है, तो उसके नीचे जो है बहुत ज़्यादा 90% जो आइसबर्ग है वो नीचे पानी के अंदर होती है, तो शिप्स जो होती हैं वो ये चीज़ें देख नहीं पाती, तो एक बहुत बड़ा खतरा होते हैं आइसबर्ग शिप के लिए. नाउ आइसबर्ग को डिटेल में पढ़ेंगे. As we reach near Greenland, we see big blocks of ice floating in water. जैसे हम ग्रीनलैंड में जाते हैं, ग्रीनलैंड के पास जाते हैं तो हम देखेंगे बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं आइस के वो पानी में फ्लोट कर रहे हैं. That is called icebergs. These are icebergs. Icebergs consist of heavily compacted snow that fell on the Greenlandic ice cap several thousand years ago. In some cases, more than 15,000 years ago. यानी इतनी पुरानी आइस कैप्स होती हैं, आइसबर्ग होती हैं ये, जो पानी में फ्लोट करती रहती हैं. The ice cap is in a constant state of change and movement, and every year it produces thousands of icebergs that are primarily formed in the sea from glaciers in the central and northwestern region of Greenland and on Greenland east coast. और इस तरीके से हर साल जो है इनकी शेप जो है, इनकी मूवमेंट जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है. बहुत सारे आइसबर्ग ऐसे ही बनते रहते हैं और वहाँ सी में ग्रीनलैंड के आसपास फ्लोट करते रहते हैं. नेक्स्ट इज वेजिटेशन. अब क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वेजिटेशन कैसी होगी, बहुत कम वेजिटेशन होती है यहाँ. एज ऑलमोस्ट द होल आइलैंड इज कवर्ड विद आइस, देयर इज हार्डली एनी ग्रीनरी. कहीं कहीं आपको थोड़ी बहुत ग्रीनरी दिखेगी जो टुंड्रा रीजन है, जैसे कि ग्रीनलैंड है, ठीक है, जहाँ कुछ टाइम के लिए शॉर्ट समर आती है. नो प्लांट्स और वेजिटेशन कैन ग्रो ड्यूरिंग द शॉर्ट समर. अ नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट्स स्प्रिंग अप एंड फ्लोरिश. द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द रीजन हाउएवर कंसिस्ट ऑफ मोसेस एंड लीचन्स, यानी जो अपने आप से ग्रो होती है, जैसे मोसेस एंड लीचन्स. फाइन. दे आर यूज्ड एज फोडर फॉर एनिमल. और इसका क्या यूज करते हैं वहां के लोग, एनिमल्स के चारे के रूप में. नाउ नेक्स्ट इज एनिमल लाइफ. अब ग्रीनरी बहुत कम है, वेजिटेशन बहुत कम है, तो यहाँ पर एनिमल लाइफ जो है वो भी बहुत कम होती है. ग्रीनलैंड इज होम टू सेवरल लैंड मैमल्स इंक्लूडिंग आर्कटिक फोक्स, एरमाइन, लमिंग, मस्क ऑक्स एंड पोलर बियर, रेनडियर एंड स्नो हेयर. दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ फर. इनके ऊपर एक थिक कोट ऑफ फर होती है जो इनको एक्सट्रीम कोल्ड से बचाती है, ठीक है. वोल्फ लाइक डॉग होते हैं यहाँ, जिनको क्या कहते हैं, हस्कीज कहते हैं. हस्की क्या करते हैं, सामान को पुल करते हैं स्नोई रीजन में. आर्कटिक टर्म अ माइग्रेटरी सी गुल दैट ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल एवरी ईयर इज ऑल्सो फाउंड इन ग्रीनलैंड. एक बर्ड जो कि आर्कटिक टर्न जिसका नाम है, हर साल नॉर्थ पोल से साउथ पोल इतना लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं, वो भी ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं. The surrounding water bodies are a home to seals and whales. और पानी वाले एनिमल कौन से मिलते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक आइलैंड है तो आसपास की वाटर बॉडीज में आपको सील्स और व्हेल्स देखने को मिलेंगी. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज लाइफ इन ग्रीनलैंड. अब इतनी ठंड में लोग कैसे रहते हैं ग्रीनलैंड में.
इनुइट्स प्रीवियसली एस्किमोज आर द नेटिव पीपल, यहाँ के नेटिव पीपल कौन है, यानी जो शुरू से रहते हैं, दैट आर इनुइट्स, ओके, जिनको एस्किमोज कहते थे। दे आर शॉर्ट एंड स्टाउट, शॉर्ट होते हैं, स्टाउट होते हैं। दे हैव नैरो ब्लैक आइज एंड फ्लैट फेस। दे लिव मोस्टली इन स्मॉल विलेजेस अलोंग द साउथ वेस्ट कोस्ट, और छोटे छोटे गांव बनाकर साउथ वेस्ट कोस्ट के पास रहते हैं। दे हैव लर्न टू लिव इन एक्सट्रीम क्लाइमेट, कैसे रह पाते हैं, क्योंकि अब इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है इतने ठंड वाले जगह पर कैसे रहते हैं। इनके क्लोथ्स जो होते हैं, जो कोट ट्राउजर होते हैं, वो एनिमल फर के बने होते हैं। हुड लाइन जैकेट्स ये पहनते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फर लगा होता है। मैन वुमेन बच्चे सारे उसी टाइप की जैकेट पहनते हैं। सच अ जैकेट इज कॉल्ड अ परका, और इस जैकेट को क्या नाम देते हैं, जो एनिमल फर की बनी होती है, हुडी जैकेट होती है, दैट इज नोन एज परका। They wear long leather boots. They keep their heads covered. Okay, long leather के बूट पहनते हैं और अपने हेड को हमेशा कवर रखते हैं ठंडी हवाओं से बचने के लिए। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन wear the same type of dresses. सब लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं। The Inuits do not live in permanent houses. During the winter season, they built igloos with आइस ब्लॉक्स, और इनके कोई परमानेंट हाउस नहीं होते हैं, ठीक है। जो विंटर सीजन आता है तो ये क्या बना लेते हैं, इग्लू बना लेते हैं। इग्लू आपने देखा होगा, राउंड एक डोम टाइप का बर्फ का बना हुआ, आइस ब्लॉक्स का बना हुआ एक हाउस होता है, ठीक है। The igloo is dome shaped and there is a small hole at the top. Smoke or hot air can pass through it. अब कुछ भी काम करते हैं, ये कुछ भी फायर का काम करते हैं, तो ऊपर एक छोटा सा होल होता है जिसमें से फायर या स्मोक जो है वो बाहर निकल जाता है। A tunnel is built to enter the igloo, और एक टनल बनाई जाती है इग्लू में जाने के लिए, ओके। One has to crawl to enter in it, यानी क्रॉल करके आपको जाना होता है, छोटा सा दरवाजा बना होता है। The fur skin is spread out on the floor, और जमीन पर, फर्श पर क्या बिछा होता है, एक एनिमल की फर स्किन बिछी होती है ताकि उनको गर्म रख सके। The fats from animals is used as fuel, और फ्यूल कैसे यूज करते हैं, एनिमल्स का जो फैट है उसको बर्न करके वो एज अ फ्यूल यूज करते हैं। इनुइट्स आर गुड स्विमर्स, इनुइट्स हैं, अब ये आइलैंड है तो ये लोग क्या होते हैं, अच्छे स्विमर होते हैं, ठीक है। They use sledges pulled by huskies to transport their big and heavy hunt. Huskies are wolf-like dog. अभी आपने पढ़ा wolf-like dogs जो होते हैं उनको husky कहते हैं, तो sledges pull करने के लिए, transport के लिए huskies को use करते हैं। Children जो हैं वो भी huskies यानी sledges पर बैठ जाते हैं। During the short summer season they live in tents and rear reindeers. और जब short summer आता है, अब सर्दियों में कहाँ रहते हैं, igloos में, ठीक है। अब समर सीजन जब आता है तो ये टेंट बना लेते हैं और रेनडियर को पालते हैं, वहां पर रहते हैं। द एंटायर लाइफ ऑफ इनुइट्स इज डिपेंडेंट अपॉन एनिमल, इनकी पूरी लाइफ जो है वो एनिमल के आसपास ही बीतती है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है लाइवलीहुड के लिए। नाउ डू यू नो The Inuits don't like themselves to be called Eskimos because the word Eskimo means eaters of raw meat. Inuits को बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग उन्हें एस्किमोज कहें, क्योंकि एस्किमोज का मतलब होता है ऐसे लोग जो कच्चा मीट खाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको इनुइट्स कहा गया। Now the Inuits led a very hard life. They are mainly hunters. Hunters होते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। बहुत हार्ड लाइफ होती है इनकी। और किस किस का शिकार ये करते हैं, सील्स, वॉलरसेस, व्हेल्स एंड पोलर बियर्स। इन द पास्ट दे यूज बोज एंड हार्पून्स टू हंट। नाउ व्हाट इज अ हार्पून? अ हार्पून इज अ लॉन्ग स्पीयर विद अ रोप अटैच टू इट। एक लॉन्ग स्पीयर होता है जिसके साथ एक रोप अटैच होती है, और इसका ये क्या करते हैं, इसका काम करते हैं फिश को हंट करने के लिए। जब फिश ब्रीथ करने के लिए सरफेस पर आती है तो ये इसको उसके ऊपर थ्रो करते हैं और उसको पायर्स करके हंट कर लेते हैं, ओके। नाउ डेज राइफल्स आर यूज्ड फॉर हंटिंग। अब पहले हार्पून का यूज होता था, अब लोगों के पास क्या है, राइफल्स हैं, ओके। बोट्स कोस्ट कयाक्स आर यूज फॉर हंटिंग सी एनिमल्स। कयाक इस बोट को कहते हैं, ठीक है, इसका यूज किया जाता है हंट करने के लिए। एंड दीज बोट्स आर मेड ऑफ सील स्किन फॉर हंटिंग व्हेल्स। अ लार्ज बोट कॉल्ड यूमियक इज यूज्ड। अब छोटे छोटे जो हंटिंग करने के लिए, सी एनिमल के हंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कयाक का, ठीक है। एक बड़ी बोट होती है जो बड़ी बड़ी फिशेज जैसे कि व्हेल को हंट करना है तो ये बड़ी बोट का यूज करते हैं जिसको क्या कहते हैं, उमैक, okay. Now do you know
इग्लू क्या होता है? इग्लू एक स्नो हाउस होता है, ठीक है, जो ब्लॉक ऑफ आइस से बना होता है, डोम शेप होता है, जिसके ऊपर जिसमें एक टनल होती है, टनल से आप बैंड होके अंदर एंटर करते हो, ठीक है। फ्लोर पर जो है वो एनिमल की फर बिछी होती है, ऊपर रूफ में एक होल होता है जिसमें से फायर और स्मोक बाहर जाती है, और ये अंदर जो लोग रहते हैं विंटर सीजन में उनको इग्लू जो है वो गर्म रखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसी है ग्रीनलैंड की? ग्रीनलैंड टुडे इज क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग एंड फिश एक्सपोर्ट। अब फिशिंग आइलैंड है, आसपास सारा क्या है, वाटर ही वाटर है, तो किस चीज़ पर डिपेंड है? ये फिशिंग पर डिपेंड है, फिश का एक्सपोर्ट करते हैं। एंड द श्रिम्प फिशिंग इंडस्ट्री इज बाय फॉर द लार्जेस्ट इनकम अर्नर। ओके, तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है ग्रीनलैंड में कैसे आता है? ड्यू टू फिशिंग ओनली। Numerous mineral prospectors are growing increasingly. These include aluminium, nickel, platinum, and tungsten, titanium, and copper. The country holds contests to attract tourists such as dog racing, ice fishing, hiking, and cross-country racing. Okay, Greenland में ये sports भी हैं, ठीक है, competitions होते हैं tourists को attract करने के लिए. Next is transport and communication. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कैसे ट्रांसपोर्ट होता होगा यहाँ पर? अब एक आइलैंड है तो क्या हो सकता है यहाँ पर? द मेजर एयरपोर्ट इज कंगरलुसा एंड एयरपोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट एट कंगरलुसक एंड इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट कनेक्ट मेनली टू Copenhagen, and as it May 2007, Air Greenland initiated a seasonal route to फ्रॉम एंड बैम्टूर इन द यूनाइटेड स्टेट। तो मोस्टली क्या यूज होता है यहाँ पर? एयर ट्रांसपोर्ट यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज कल्चर एंड स्पोर्ट्स। द कल्चर ऑफ ग्रीनलैंड हैज मच इन कॉमन विद इनुइट ट्रेडिशन as the majority of people are descendant from Inuit. जो Inuit का culture है वही आगे follow हो रहा है। People still go ice fishing and there are annual dog sledges races in which everyone with the term participates. और हर साल क्या होती है? sledges race होती है skis के साथ, जिसमें almost सब लोग participate करते हैं। Nevertheless, for some time now, fishing by traditional method has been increasingly replaced by the use of firearms and modern technology. अभी फिर से, पहले राइफल का यूज होने लगा था फिशिंग करने के लिए, लेकिन फिर से अब पुराने मेथड का, ट्रेडिशनल मेथड का लोग यूज करने लगे हैं। एंड फुटबॉल इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ग्रीनलैंड, बट ग्रीनलैंड इज नॉट अ मेंबर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, दैट इज फीफा। फुटबॉल जो है ये यहाँ का क्या है? नेशनल स्पोर्ट है, लेकिन इसके बावजूद जो है ग्रीनलैंड इज नॉट अ मेंबर ऑफ फीफा। फाइन। नाउ रिसेंट चेंजेस। अब क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं? अब मॉडर्न टाइम में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं ग्रीनलैंड में? ग्रीनलैंड में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। देयर आर सेवरल लार्ज टाउन, बड़े बड़े टाउन बन गए हैं। पहले छोटे छोटे गांव में लोग रहते थे। पीपल वर्क इन बिग ऑयल कंपनीज, ऑयल इंडस्ट्रीज वहाँ बन गई हैं, लोग वहाँ पर काम करते हैं। दे लिव इन टाउन्स हैविंग शॉप्स, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मार्केट्स एंड क्लब्स। दे enjoy efficient postal and radio services. They have all the modern means of transport including helicopters. Motorboats have replaced the kayaks of the past. अब पहले kayaks होती थी, ठीक है, जिसको वो क्या करते थे? हंटिंग करने के लिए, फिशिंग करने के लिए यूज करते थे। अब उसकी जगह किसने ले ली है? मोटरबोट्स ने। And instead of spears, the hunters now use rifles. Fur farms have been set up to breed fur animals for their fur rather than trying to trap these animals in the ocean. Okay, तो अब क्या करते हैं? Instead of spear की जगह hunters जो हैं वो राइफल का यूज करने लगे हैं। Fur farms have been set up to breed fur animals for their fur rather than trying to trap these animals in the open. And फर के लिए एनिमल को वो क्या करने लगे हैं? रियर करने लगे हैं, ठीक है। पहले ढूंढते थे, हंट करते थे, फिर उनके फर को पुल करते थे, अब उनको रियर करने लगे हैं, ब्रीड करने लगे हैं। ग्रीनलैंड हैज मैनी लार्ज टाउन्स। द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज गोताम विच इज अ मॉडर्न सेंटर ऑफ ट्रेड। इट ऑल्सो हैज अ मॉडर्न एयरपोर्ट। नूक इज द बिगेस्ट टाउन एंड Hostenborg has a large shipyard. Since 1953, Greenland is a part of Denmark. Modern science and technology have brought it closer to the rest of the world. 1953 तक ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का एक पार्ट था, लेकिन अब मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काफ़ी चेंजेस ग्रीनलैंड में ला दिए हैं, तो ग्रीनलैंड क्या है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। डू यू नो
Alaska, though situated near Canada, is one of the states of USA. Denmark, Norway, Sweden and Finland are called Scandinavian countries, and the people living like tundra region of Scandinavia are called taps. Now here are some important points. First is Greenland, the largest island in the world, is located in the Arctic Circle. Second, a major part of this island is under permanent ice. It has a very cold climate throughout the year, and Inuits live in igloos built with ice blocks in Greenland. The Inuits are skilled hunters and their entire life is dependent on animals. Nowadays, their lifestyle is changing and Greenland is making progress, and it has many roads, schools, colleges and hospitals. So, this is the chapter, bachche. I think you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.